Welcome back, friends, and this will be the second video which I'm going to upload on my YouTube channel, and this will be with respect to discrete mathematics. Okay, uh, so in the previous video, I have discussed with you about some programs which we have to write with respect to linked list, with respect to graph, but I am thinking that let us just cover the topic of algorithms first, and then I think we will go to the programming part. So first of all, what I am trying to do is, you have learned about the data structures, right? Then we will cover some simple topics now, like discrete mathematics is there, digital logic is there, right? So these are some of the topics which I'm going to cover in the next few videos, and then we will jump on to the topic of algorithm and then the programming part. All right. Okay, so let us now purely focus on the discrete mathematics part, and let's just quickly summarize all the topics which we have learned during the gate preparation. All right, let me just clean up my chashma. Okay, so see, the first point is that this operation we need to remember, right? And the meaning of this particular operation is that A union B minus A intersection B, right? Before starting that, I have my notes, right, which I have made during the gate preparation, and some points I have mentioned over there, but this is not present onto the sheet which you are seeing right now on the screen, because these are the crisp note. Okay, so whenever I need to explain something, I will use the help of my this particular notebook to explain further, right? Oh, okay. So firstly is the definition of the finite set. The interviewer can ask you what is the definition of finite set. Then that means what? That if there are exactly n elements in the set, that is, you can count the number of elements in the set exactly n, not countably infinite but countably finite. Okay, then that particular set is called as finite set. Okay, right. Now some laws are there, right, with respect to sets. Okay, the two most important laws are, first is the idempotent law and second is the involution law. Idempotent, idempotent, right, means what? A union A is equal to A, or and A intersection A is equal to A. This particular property is known as idempotent. Now how would you remember this thing, right? Idempotent, idempotent, I am not important, idempotent. Idempotent means what? I am not that important. So you can union with me, you can get the same, right? You can do the intersection with me, you can get the same me, right? So A union A is equal to A intersection A is equal to A. Involution law, this you have to remember. Involution, something like that you need to remember. Okay. ठीक है. Now let us just discuss about the relation part. Okay, relation का meaning क्या है, right? Relation. So when somebody asks you about what is the definition of relation, then we can always say, let us say we have the two sets, A and B are these sets, right? So any subset of A cross B, we can call it as relation, right? Absolutely right. Any possible subset of A cross B, we can call it as a relation, right? Okay. Now in this particular context, the definition which we need to consider is with respect to diagonal relation. What is the meaning of diagonal relation? Diagonal relation means for all x which are present in the particular set A, relation must consist of x comma x. That means if, let's say, we have A is equal to 1 2 3, and the relation which we are going to apply on this particular set A consists of only 1 1 and 2 2, then this is not a diagonal relation, right? This is not a diagonal relation. But what? R is equal to 1 1 2 2 3 3, this absolutely is a diagonal relation for all. This is the important thing which you need to remember. Okay, now
some types of relations are there which are really important: reflexive, irreflexive, symmetric, antisymmetric, and asymmetric, right? So what are these? Let me just change the color of my pen tab. Okay, reflexive, irreflexive, symmetric, antisymmetric, and asymmetric, right? You probably would know about this thing, so let me just quickly revise this all thing. Okay, reflexive relations means what? For all x belongs to a, x comma x belongs to r. Now, is this similar to diagonal relation? Is this similar to diagonal relation? That's what I'm asking to you. Obviously, for all x, x comma x belongs to r, then that particular relation is diagonal relation as well and reflexive. But remember, 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 remember what? Diagonal relation only has x comma x elements, but reflexive relation, right? Reflexive relation can have some other elements as well. That means, let me just take the example, right? Let us say, okay, let me just take the same example of a set. Sorry, what is this happening? Okay. Yeah. So A is our set, because, okay, A is our set 1, 2, and 3. And let us say we are considering a relation R1 to be 1, 1, 2, 2, 3, 3, and then 1, 2. Okay. And let us consider R2 to be as 1, 1, 2, 2, and 3, 3. Right. So is relation R1 a diagonal relation? No. No. A diagonal relation only consists of x comma x elements where x belongs to set A. But R1 is reflexive relation or not? Reflexive relation ये है कि नहीं है? Yes, because for all x belongs to A, x comma x, yes, belongs to R1, right? इनके बाद में कुछ भी हो सकता है, right? So R1 is a reflexive relation. And R2 is of course a reflexive relation, right? This is what we need to remember. Okay. Okay, so now what will be the total number of reflexive relations which can be operated on a set A, right? So when we write the relation on a set A, then the total number of elements in that particular relation from A to A would be what? N square, right? Because n is the number of elements in the set A, n cross n, so n square. And from that n square we require n elements in our hand. That means x comma x, right? And then the remaining n square minus n elements can be there in that particular relation or cannot be there in that particular reflexive relation, right? So in that particular case, 2 raised to power n square minus n would be the total number of reflexive relations, right? Yes. Okay, so now let us just discuss about the meaning of irreflexive relation. For all x belongs to a, x comma x should not belong to the relation. And in this particular case also, the total number of the irreflexive relations, what can be the formula for that? The total number of the elements in the relation would be n square, right? So from that n square we do not require those n elements which are of the form x comma x where x belongs to a. So that means we only have to choose from n square minus n elements. So in this particular case as well, each n square यानी कि n square minus n elements में से हमारे पास में दो possibility है, either that particular element would be in that particular relation or it would not be, right? So we have two choices for each element
in the set of n square minus n elements 2 to the power n square minus n. ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या है? अगर if a comma b belongs to R relation, then that means b comma a must belong to R, right? So in this particular case as well, the total number what would be? इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, right? So let us say, okay, let us consider x comma x first. Okay, x comma x इस फॉर्म के जो भी एलिमेंट्स है उस पर्टिकुलर रिलेशन में उनका क्या होगा? ओके, सो इफ x comma x इज देयर, देन दैट मीन्स दैट उसका उल्टा तो उस ग्रुप उस पर्टिकुलर रिलेशन में है ही, राइट? सो सिमेट्रिक तो हो गई, राइट? सो वी हैव n elements of x comma x type, or each element from those n elements have two choices: either it will be in the relation or it will not be in the relation, and in both the cases the symmetricity would be maintained, right? So 2 to the power n, ये इस केस में हो गया. Now n square minus n जो एलिमेंट्स है वो बचे हुए अभी भी, राइट? n square minus n अपॉन 2, ये हो गए कौन से एलिमेंट्स? ये हो गए वो एलिमेंट्स जो कि है a कॉमा बी फॉर्मेट के, क्योंकि a कॉमा बी के करस्पॉन्डिंग b कॉमा a तो आएगा ही उन पर्टिकुलर टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन दैट रिलेशन में, राइट? सो 2 to the power n square minus n अपॉन 2 into 2 to the power n will be the total number of symmetric relation, जिसकी वैल्यू आती है 2 to the power n into n plus 1 upon 2. हो गया. एंटी सिमेट्रिक का मीनिंग क्या है, राइट? एंटी सिमेट्रिक का मीनिंग ये है कि अगर a comma b belongs to R and b comma a also belongs to R, then that means a is equal to b. a is equal to b. ठीक है, ये हो गया. Now how can we find the total number of irreflexive relations, right? So what can be the way of thinking for us if the interviewer asks us that what would be your thinking, right? So first let us consider about the diagonals, that means x comma x के फॉर्म के जो भी एलिमेंट्स है उनके ऊपर हम लोग अभी ध्यान देते हैं, राइट? x comma x, ओके, x comma x है, ठीक है. Then it satisfies the anti-symmetricity property, right? Because a comma a उस particular set में है and a is equal to a, right? Okay. So इस केस में possibility हमारी बनती है 2 to the power n, right? Now what about the n square minus n elements of the total relation if we consider as whole? n square minus n elements के केस में क्या होगा? ओके, तो n square minus n अपॉन 2, ये जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे a comma b फॉर्मेट के, where a is not equal to b, okay? And in n square minus n upon 2 elements में if a comma b belongs to R, then b comma a would not belong to n square minus n upon 2 elements. ठीक है, एब्सोल्युटली. ये इतनी बात तो हमको समझ में आ चुकी है, राइट? कि मैं समझा दूं आपको? ओके, चलो समझा ही देता हूँ भाई. तो क्या है भाई अपना, ये मैं क्या आपसे बोल रहा हूँ कि टोटल हमारे पास में n स्क्वायर एलिमेंट्स है इन द रिलेशन, राइट? इन इफ वी कंसिडर द होल a क्रॉस a, ठीक है. अभी इसमें से जो n एलिमेंट्स के बारे में मैं बोल रहा हूँ आपसे वो होंगे x कॉमा x फॉर्मेट के, वेयर सच दैट x बिलोंग्स टू a. अभी इनको तो हमको उस पर्टिकुलर रिलेशन में लेना ही है, राइट? टू सेटिस्फाई द एंटी सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टी. सो वी हैव 2 to the power n चॉइसेस इन दैट, क्योंकि हर एक जो एलिमेंट है x कॉमा x, तो उसके पास में दो पॉसिबिलिटी है. वो आइदर उस वो आइदर उस एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में जा सकता है या फिर वो नहीं जा सकता है, राइट? और बचे हुए जो n स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2 एंड n स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2, यहाँ पे क्या है? a कॉमा b है और यहाँ पे b कॉमा a टाइप के सारे एलिमेंट्स हैं, ओके, ठीक है. तो
we cannot take both the elements, right? Because here A is not equal to B and here also B is not equal to A. So we can take either from this set or either from this set. So whenever we go to a specific element in the relation, okay, तो इस पर्टिकुलर केस में एलिमेंट इन द रिलेशन का मतलब है कि वो ऑफ द फॉर्म रहेगा ए कॉमा बी। इस पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हम देखेंगे तो हम इधर इसको ले सकते हैं या फिर इसके अपोजिट को ले सकते हैं या फिर बी को। दोनों की पॉसिबिलिटी हमारे पास में नहीं है, ठीक है। तो एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू एलिमेंट्स में भी हमारे पास में दो चॉइसेस हैं। तो टोटल कितना आएगा, टू टू द पावर एन इंटू टू टू द पावर एन माइनस टू, राइट। तो यही मैंने इसमें भी लिखा हुआ है। ओके, आई थिंक मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे 3 है, राइट। तो 3 है, हाँ एक सेकेंड, अरे सॉरी, हाँ हाँ ये तो सही है अपना, राइट। बट ये भी हो सकता है कि इन दोनों में से हमको कुछ भी नहीं लेना है, राइट। तो उस पर्टिकुलर केस में हर किसी एलिमेंट के पास में 3 चॉइसेस है। 3 चॉइसेस कौन कौन सी, एक तो वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर रिलेशन में हो ही ना, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो एलिमेंट हो, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि उसका उल्टा हो, राइट। तो 3 चॉइसेस है, ओके। अच्छा चलो, तो ठीक है, ये हो गया अपना। तो अभी समझते हैं कि एसिमेट्रिक के बारे में। एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए विल नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है ना। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अभी इस केस में ए कॉमा ए तो हो ही नहीं सकता है यार, एक्स कॉमा एक्स के फॉर्मेट के जो भी एलिमेंट्स है वो तो हो ही नहीं सकता है। तो एंटीसिमेट्रिक में से टू टू द पावर एन का टर्म तो हमारा गया, राइट। अभी एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू एलिमेंट्स है हमारे पास में, राइट। तो हर किसी एलिमेंट के पास में फिर से 3 चॉइसेस है यार। वो उस पर्टिकुलर रिलेशन में रह सकता है, वो एज इट इज उस पर्टिकुलर रिलेशन में रह सकता है, या फिर उल्टा करके भी वो उस पर्टिकुलर रिलेशन में रह सकता है, ठीक है। यही खाली इसमें 3 पॉसिबिलिटी है, राइट। तो 3 टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू। चलो इतना तो बेसिक हमारा हो गया। अभी देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, ठीक है ना। इसमें हाइलाइटर का भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, देखता हूँ कि कैसा है। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। चलो, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, ठीक है। इफ R1 एंड R2 आर ट्रांजिट आर सॉरी रिफ्लेक्ट आर, क्या बोल रहा हूँ यार, इक्विवेलेंस रिलेशन, देन R1 intersection R2 will also be equivalence relation, but R1 union R2 did not be, ठीक है। अभी पार्टीशन, फॉर एवरी पार्टीशन इक्विवेलेंस रिलेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। पार्टीशन है क्या, है ना। अभी पार्टीशन को समझते, ठीक है। लेट अस कंसिडर कि हमारे पास में एक सेट है A इज इक्वल टू, भाई इसकी नींव कैसे छोटी होगी। लेट अस कंसिडर कि हमारे पास में एक सेट है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एंड एक हमारे पास में इक्विवेलेंस रिलेशन भी है, जिसमें कि हमारे पास में एलिमेंट्स हैं कौन कौन से। मैं मेरे नोट्स का हेल्प भी ले सकता हूँ, ले रहा हूँ मतलब, सॉरी। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 4 4 1 2 5 एंड 5 2। तो सबसे पहले तो भैया देखते हैं यार कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा है कि नहीं। सबसे पहले भाई हमको देखने का है क्या कि कौन कौन सी अपनी प्रॉपर्टीज थी, रिफ्लेक्सिव,
ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, राइट। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब तो भैया यही है कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए और 5 5 होना चाहिए। तो ये सारे के सारे इसमें हैं, बाकियों की चिंता करने की हमको ज़रूरत जो है वो नहीं है, राइट। बाकी के एलिमेंट्स की इन द रिलेशन, ओके। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है भाई? ट्रांजिटिव का मतलब तो भैया सिंपल है कि इफ 1 1 is there and 1 2 is there, then 1 2 will be there, or 2 3 is there and 3 4 is there, then 2 4 will be there। तो इस पर्टिकुलर केस में ऐसा है क्या? 1, ठीक है, इसके बाद में 1 है, 1 4 है, हाँ ये तो है, राइट। तो ट्रांजिटिव भी है। सिमेट्रिक का देखते हैं। सिमेट्रिक के केस में हमने डेफिनेशन क्या बोली थी? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये एलिमेंट्स तो सेटिस्फाई सबके सब ना कर रहे हैं, राइट। और ये भी कर रहा है इस केस में। तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अभी पार्टीशन क्या है यार, ठीक है ना। अभी हम खाली 1 को देखें, 1 किन किन से रिलेट कर रहा है, राइट। 1 1 से कर रहा है, 1 फिर 4 से कर रहा है, ठीक है, बस इतने से ही कर रहा है 1, राइट राइट। 2 किन से रिलेट भाई कर रहा है? 2 रिलेट किन किन से कर रहा है? 2 रिलेट सबसे पहले 2 से कर रहा है और फिर 2 रिलेट 5 से भी कर रहा है, राइट। सो 2 5 ऐसे ही आप सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स हैं उनको आप दे सकते हो, राइट। 4 जो रिलेट कर रहा है वो कर रहा है 1 4 से, और फिर 5 जो रिलेट कर रहा है वो कर रहा है 2 5 से। तो मतलब कि जो हमारा ए सेट था 1 2 3 4 और 5, वो हमारा पूरी तरीके से पार्टीशन में डिवाइड अगर हम लोग इसको करेंगे तो ये होगा 1 4 2 5 एंड 3, ठीक है ना। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए पार्टीशन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। और पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 1 4 को 1 4 से क्रॉस कर देने का हमको, ठीक है। और सबका यूनियन लेते रहने का। 1 4 क्रॉस 1 4 यूनियन 2 5 क्रॉस 2 5 यूनियन 3 क्रॉस 3, ठीक है। चलो इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। जो इंटरव्यूअर है वो इसके ज़्यादा डीप में जा नहीं पाएंगे होपफुली, बट यू शुड गेट एन आइडिया। सी, इंटरव्यूअर आपकी जो भी टेक्निकल नॉलेज है वो तो गेट के एग्जाम में चेक हो चुकी है। नाउ इंटरव्यूअर विल फोकस ओनली ऑन द कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट, ठीक है ना। सो वी नीड टू रिमेंबर दैट कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट पे फोकस करने का। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एंटीसिमेट्रिक इज द important factor over here, absolutely। चलो, और टोटल ऑर्डर रिलेशन का मतलब क्या है? partial order relation when every element is related to every other element। अच्छा, partial order relation, ठीक है, when every element is related to every other element, ओके, ठीक है ना। ये कैसा होता है कि you would have solved this particular problem, but टोटल ऑर्डर रिलेशन इतना काम में नहीं आता है यार, ठीक है ना। बस वी नीड टू रिमेंबर द डेफिनेशन, ओके। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन व्हेन एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी अदर एलिमेंट, मतलब वो खुद से भी रिलेट कर रहा है एंड किसी और से भी रिलेट वो कर रहा है। हर किसी एलिमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट दी हैश डायग्राम कॉन्सेप्ट। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को हम लोग इस केस में बोलते हैं क्या? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को हम लोग जो है कि नहीं, वो पोसेट भी बोलते हैं, राइट। और पोसेट के केस में हमारे पास में जब भी हम लोग हैश डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, 4 कॉन्सेप्ट भी है। मैक्सिमल एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट। मैक्सिमल का मतलब क्या है? इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट, इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट, इसका क्या मतलब है?
if it is not related to any other element, यानी कि उसके ऊपर कोई भी नहीं है, राइट। मिनिमल एलिमेंट का मीनिंग क्या है? इफ इट इज रिलेटेड, ये क्या लिखा हुआ मैंने, इफ, ओके सॉरी, ये तो ये हो चुका है कट, राइट, सॉरी, पेन ही ड्रॉ करता हूँ भाई, पेन, ओके। इफ नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट, मतलब कि इफ नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट, मिनिमल एलिमेंट, मतलब कि उसके नीचे कोई भी नहीं है ना। लेट अस जस्ट रिलैक्स फॉर नाउ, ओके। ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इस केस में मीनिंग क्या है? एवरी एलिमेंट इज रिलेटिंग टू इट, यानी कि हर कोई एलिमेंट उस पर्टिकुलर एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, राइट। एंड लीस्ट का मतलब क्या है? जो हर किसी से रिलेट कर रहा है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दिस 4 पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ओके। सपोज यार हमारे पास में ये डायग्राम है, ठीक है। संचित सर के पीपीटी से ही ये डायग्राम उठाई है मैंने, मेरे नोट्स में भी है बनाई हुई। ए बी सी डी ई और एफ है ये, ठीक है। अभी फर्स्ट टारगेट इज व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमल एलिमेंट्स इन अबाउ पोसेट, ठीक है। अभी पोसेट, ठीक है ना, मैक्सिमल एलिमेंट, ठीक है, ये क्या होंगे इस पर्टिकुलर केस में? अभी इसका मीनिंग, ये डायग्राम का मीनिंग क्या है? ए इज रिलेटिंग टू ए ऑल्सो, बट ए सी से भी रिलेट कर रहा है, ए ई से भी रिलेट कर रहा है ना। तो ये ध्यान में रखो, ठीक है। मैक्सिमल एलिमेंट्स, मैक्सिमल का मीनिंग क्या है कि उसके ऊपर कोई भी नहीं है, तो यानी कि ई कॉमा एफ हो गया, राइट। इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट, ठीक है। और फिर सेकेंड है हमारा मिनिमल एलिमेंट्स। मिनिमल एलिमेंट्स का मीनिंग क्या है भाई लोग? मिनिमल का मीनिंग ये है कि कोई भी उससे रिलेट नहीं कर रहा है, राइट। इफ नो अदर एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट, इफ नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट, यानी कि ए कॉमा बी, क्योंकि उसके नीचे कोई है ही नहीं, राइट। ग्रेटेस्ट का मीनिंग क्या है? if every element is relating to that element, then that particular element is known as greatest. मैं क्या बोल रहा हूँ? ग्रेटेस्ट एलिमेंट वो एलिमेंट है जिससे कि सारे के सारे एलिमेंट रिलेट कर रहे हो, ओके। तो यहाँ पे ऐसा कौन है भाई? ई हो सकता है क्या? नहीं ना, ई को एफ रिलेट नहीं कर रहा है, राइट। एंड एफ को भी ई रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसके नीचे की तो कोई बात ही नहीं है, बिकॉज ई एंड एफ वुड नॉट relate to that specific element, right? So greatest element इस केस में हो गए हमारे 5, एंड इन द सिमिलर वे लीस्ट एलिमेंट भी हमारे इस केस में होंगे 5, ओके। तो समरी क्या है? मैक्सिमल एलिमेंट का मीनिंग क्या है कि उसके ऊपर कोई भी नहीं है। मिनिमल का मीनिंग क्या है? उसके नीचे कोई भी नहीं है। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो उसके साथ में रिलेट कर रहे हैं। मिनिमल का मीनिंग, सॉरी, लीस्ट का मीनिंग क्या है कि लीस्ट का मीनिंग क्या है? जो कि हर किसी के साथ में रिलेट कर रहा है, वो एलिमेंट हर किसी के साथ में रिलेट कर रहा है। एंड ग्रेटेस्ट का, एंड यस, ग्रेटेस्ट का मीनिंग क्या है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटिंग टू दैट, ठीक है ना। मतलब कि ये एक है एलिमेंट एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटिंग टू दैट, देन दैट मीन्स इट इज ग्रेटेस्ट। लीस्ट का मतलब क्या है कि वो हर किसी से रिलेट कर रहा है, तो लाइनें यहाँ पे बॉटम से शुरू होंगी और ग्रेटेस्ट के केस में लाइनें उस एलिमेंट की ओर जाएंगी, ठीक है।
ओके, तो चलो अभी वी विल सी अबाउट दिस पर्टिकुलर डायग्राम एंड वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द मैक्सिमल, मिनिमल, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट इन दिस। ओके, मैक्सिमल का मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोई भी नहीं है, मतलब कि वो एलिमेंट किसी से रिलेट नहीं कर पा रहा है भाई। तो अभी जे तो होगा ही, राइट। जी भी होगा इस केस में, क्योंकि जी किसी से भी रिलेट नहीं कर पा रहा है। नीचे नहीं जा सकते हम, हमको खाली ऊपर ही जाना है। ओके, और जी से ऊपर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, ठीक है ना। तो जी भी आएगा, एच भी आएगा और ई भी आएगा इस पर्टिकुलर केस में, राइट। मिनिमल मतलब क्या, कि उसके साथ में कोई रिलेशन नहीं है किसी का भी, मतलब कि उसके नीचे कोई भी नहीं है, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में आएगा आई, राइट, सी आएगा, डी आएगा, सही बात है। आई आएगा, सी आएगा, डी आएगा, और एफ आ सकता है क्या? एफ आ सकता है। देखो एफ के ऊपर के एलिमेंट्स को तो छोड़ ही दो, ठीक है। सी और डी को देखते हैं। सी डी नहीं, क्योंकि डी से हम लोग जा सकते हैं बी पे, और बी से फिर हमको नीचे आना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। और ई भी नहीं है, तो एफ भी होगा, ठीक है। और ग्रेटेस्ट की बात अगर हम लोग इसमें करते हैं, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? ग्रेटेस्ट का मतलब क्या बोला था मैंने आपको, कि सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स है वो रिलेट कर पा रहे हैं, तो नहीं है, क्योंकि जी किसी से भी रिलेट नहीं कर पा रहा है, राइट। और लीस्ट भी इस केस में होगा 5। समझ में आ गया? ओके, चलो फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है इस केस में, ये हो गया हमारा क्लियर, राइट। ये कुछ कुछ लाल में जो लिखा है मैंने रेड में, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। Every hash diagram will have at least one maximal and one minimal. Every hash diagram will have at most one greatest and one least element. Sorry. Every greatest element would be maximal. Every least element would be minimal. If there is only one maximal element, then it would be greatest. If there is only one minimal element, then it would be least. ये पॉइंट्स हैं जो कि हमको खाली याद रखने के, एंड मैं अगर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी इट इज़ क्वाइट लॉन्ग वीडियो सो फार विच आई हैव सीन। चलो तो ठीक है ना। ओके, टू समराइज, every hash diagram will have at least one what maximal not greatest, okay, maximal and at least one minimal element, and at most greatest हो सकता है and at most least हो सकता है, right. Every greatest element is maximal, every least element is minimal. If there is only one maximal, then that means it is greatest. If there is only one minimal, then that means it is least, ठीक है। अभी अपर बाउंड, ओके, अपर बाउंड का मीनिंग क्या है कि जिनसे सेट के सारे एलिमेंट्स रिलेट कर पा रहे हैं। लोअर बाउंड का मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट जो सेट के सारे एलिमेंट से रिलेट कर पा रहे हैं। ओके, लीस्ट अपर बाउंड, एल यू बी का मीनिंग होता है ये वाला साइन और सुप्रीमम, ठीक है ना, और जॉइन। लीस्ट वैल्यू इन दी अपर बाउंड, लीस्ट वैल्यू का मतलब मैंने आपको पहले ही समझा था, राइट। लीस्ट वैल्यू का मतलब क्या है भाई? लीस्ट वैल्यू का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट है वो हर किसी से रिलेट कर पा रहा है, राइट। वो हर किसी से रिलेट कर पा रहा है। लीस्ट वैल्यू इन द अपर बाउंड मतलब उस अपर बाउंड में जो भी एलिमेंट्स हैं उनसे ये एलिमेंट एल यू बी रिलेट कर पा रहा है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ऐसा वाला साइन, ठीक है। और इन्फिमम, और व्हाट, जॉइन का उल्टा क्या? मीट, ठीक है ना, मीट। ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द लोअर बाउंड। जॉइन लैटिस का मीनिंग क्या है भाई? कि फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट देयर एग्जिस्ट अ जॉइन। मीट का मतलब क्या है? फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स मीट एग्जिस्ट, एंड लैटिस का मतलब क्या है? कि फॉर एवरी पेयर देयर एग्जिस्ट अ जॉइन एंड मीट, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा लेट अस टेक सम हेल्प
फ्रॉम द एग्जाम्पल्स, ओके, ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए। ठीक है, मैं एक ही एग्जांपल लेने का सोच रहा हूँ कि जिससे कि मतलब हो जाए पूरा का पूरा क्लियर अपना। एक ये एग्जांपल मेरे को लग रहा है जो कि मैं ले सकता हूँ। ओके चलो ये ले लेते हैं। कौन सा एग्जांपल है भाई? ये अभी दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा नीचे ले ले भाई। ठीक है छोड़ो। हाँ, ये है हमारी डायग्राम। ठीक है, एंड वी हैव द सेट एज बी कॉमा ई है भाई हमारा। ठीक है, अभी इस सेट के करस्पॉन्डिंग अपर बाउंड क्या रहेगा? अपर बाउंड क्या रहेगा? मैंने आपको अपर बाउंड की डेफिनेशन जो है वो बताई थी। क्या थी अपर बाउंड की डेफिनेशन? जिनसे सेट के सारे एलिमेंट्स रिलेट कर पा रहे हैं, जिनसे सेट के सारे एलिमेंट्स रिलेट कर पा रहे हैं। बी कॉमा ई है भाई। ठीक है, तो खाली एफ ही होगा, राइट? ई भी नहीं हो सकता है, राइट? तो खाली एफ ही है। और लोअर बाउंड का मीनिंग क्या है? कि ऐसे एलिमेंट जो कि सेट के एलिमेंट के साथ में रिलेट कर पा रहे हैं, राइट? तो एक तो हो गया ए, राइट? खाली ए ही होगा। बी हो सकता है क्या? बी नहीं हो सकता है क्योंकि वो ई से रिलेट नहीं कर पाएगा, तो खाली ए ही है, राइट? यस एब्सोल्युटली। तो अभी एक ही एलिमेंट है, तो यही लोअर अपर बाउंड भी रहेगा, या फिर सुप्रीमम या फिर जॉइन जो है वो यही रहेगा इसका। और यही हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रहेगा ए। ठीक है, या फिर ये वाला साइन। ठीक है ना, मीट। ओके, तो ये तो हो गया, राइट? अच्छा, मैं सेफ्टी के लिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है ना, ये ले लेते हैं। ये एग्जांपल है। ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ठीक है, ओके, तो हमको क्या चेक इस केस में करना है कि भैया कॉम्प्लीमेंट सेमी ये है कि नहीं है। कॉम्प्लीमेंट एंड और क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, राइट? ये बाद में देखेंगे, सॉरी। कॉम्प्लीमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस जो है ये बाद में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो भैया हमको देखना है कि ये जॉइन एंड मीट सिमिलैरिटीज है कि नहीं, राइट? ये बाउंडेड लैटिस में केस में ये हम लोग देखेंगे जॉइन सिमिलैरिटीज है कि नहीं। जॉइन सिमिलैरिटीज का मतलब क्या है? फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट देयर एग्जिस्ट अ जॉइन। ठीक है ना, फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट देयर एग्जिस्ट अ जॉइन। अभी जॉइन है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? जॉइन का मीनिंग होता है भैया कि हमको ऊपर जाने का है, राइट? ये दोनों पाँव को आप जो है कि नहीं ये देखो। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि ऊपर देखो, ऊपर। तो ये अगर हम लोगों ने ये दो एलिमेंट्स को अगर हमने लिया ए कॉमा जी, ठीक है, तो इस केस में जॉइन क्या होगा? जी हो सकता, जी होगा, राइट? जी कॉमा एफ के केस में जॉइन जो है वो होगा जी। बी कॉमा बी कॉमा सी के केस में क्या होगा जॉइन? डी होगा, डी, है ना, ऊपर। ठीक है, ये ट्रिक है, ओके। ठीक है, तो ऐसा कोई पेयर है क्या कि जिसका जॉइन हो ही ना? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स का जॉइन तो भैया है, राइट?
एंड मीट भी है, राइट। मीट का मतलब क्या होता है कि भैया उल्टा, नीचू जाओ, नीचू, सिमिलैरिटीज, नीचे जाने का है अपने को, है ना, नीचे जाने का है, तो वो भी है। ई और जी के केस में वो होगा ई, और ई और एफ के केस में वो कौन सा होगा, ए होगा, राइट। ई और एफ के केस में क्या होगा, ई और एफ के केस में, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या हो गया भाई इसका, ई और एफ के केस में क्या होगा, ए आएगा, क्योंकि नीचे जाते हैं तो पहला इंटरसेक्शन हमको कहाँ पे मिल रहा है, ए पे मिल रहा है, राइट। तो जॉइन एंड मीट सिमिलैरिटीज तो है, राइट। सो फॉर एवरी पेयर देयर एग्जिस्ट, क्या, फॉर एवरी पेयर देयर एग्जिस्ट अ जॉइन एंड अ मीट, दैट मीन्स इट इज अ लैटिस, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक लैटिस है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बाउंडेड लैटिस। बाउंडेड लैटिस का मीनिंग क्या है कि जिसमें कि फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हो, फिक्स नहीं, सॉरी, आई अपोलोजाइज, फाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट, इसके बारे में देखते हैं अभी, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमको फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए वी रिक्वायर टू इक्वेशन, ए, you know, join a complement would be equal to the greatest element and a meet a complement should be the least element। अगर हमको ऐसा कुछ a complement जैसा एलिमेंट मिल जाता है देन वी कॉल इट एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस का मतलब क्या है, फॉर एवरी एलिमेंट देयर इज एट मोस्ट वन कॉम्प्लीमेंट, एवरी एलिमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लैटिस, फॉर एवरी एलिमेंट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट। एंड बूलियन अलजेब्रा का मतलब क्या, फॉर एवरी एलिमेंट वी एग्जैक्टली हैव वन कॉम्प्लीमेंट, दैट मींस इट इज बोथ डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कॉम्प्लीमेंट लैटिस, ठीक है। नाउ दिस इज डन, ओके, दिस पार्ट इज डन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोजिशन, ठीक है। प्रपोजिशन का मीनिंग क्या है, प्रपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है ना। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन मीनिंग व्हाट, इट इज द डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट मीन्स फैक्ट दैट इट विल बी either true or it can be false, okay। बीच का नहीं, ट्रू या फिर false होगा, बीच का नहीं, right। if the set of premises yield another proposition conclusion, right, then this particular set of statements will be called as argument, ठीक है। if the set of premises lead to a conclusion and it is known as argument, okay। an argument is said to be valid if the conclusion q can be derived from the premises by applying the rules of inference। बिल्कुल सही बात है यार, ठीक है। and when we discuss about the proposition, there are two laws which we need to consider, okay। the first law is law of contradiction, ठीक है। and second law is the law of excluded middle, excluded middle। और ये नाम से ही समझ में आ जाता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का मीनिंग क्या है कि इफ ए इज बी इज अ प्रपोजिशन एंड ए इज नॉट बी विल आल्सो बी प्रपोजिशन, राइट। देन ये दोनों एक्सक्लूसिवली, सॉरी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, ये होंगे क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। एक्सक्लूडेड मिडल का मतलब क्या है कि ट्रू का अपोजिट क्या होगा, फॉल्स। मिडल वाला यहाँ पे कोई सीन नहीं है, राइट, ओके। तो हाँ, कंजंक्शन का मीनिंग है पी एंड क्यू, डिसजंक्शन का मीनिंग है पी यूनियन क्यू, इम्प्लीकेशन मीन्स पी एरो क्यू। इसका डिजिटल लॉजिकली अगर हम इसको सोचते हैं तो ये होगा पी बार प्लस क्यू, ठीक है। इफ पी देन क्यू। बाय कंडीशनल का मतलब क्या है, पी दोनों साइड से एरो क्यू,
और इसका मीनिंग होता है ये, जो कि होता है एक्सनॉर के इक्विवेलेंट हम लोग इसको बोल सकते हैं। पी एरो क्यू यूनियन क्यू एरो पी, ये इसका बाई कंडीशनल का दूसरा मीनिंग है। अभी इम्प्लीकेशन में हम देखते हैं, राइट। कॉन्वर्स का मीनिंग क्या है? कॉन्वर्स का मीनिंग होता है क्यू, उल्टा करना। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि नॉट जो है कि नहीं वो लगाने का, जो हमारा इम्प्लीकेशन है उस पर। एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब क्या है कि नॉट क्यू से लेकर, मतलब एरो नॉट पी, ठीक है ना। वैलिड, हाँ, वैलिड मीन्स टोटोलॉजी, ठीक है ना। इफ द प्रोफेसर आस्क यू दैट वैलिडिटी इसकी चेक करो, यानी कि यू हैव टू जस्ट चेक दैट लास्ट कॉलम में ट्रू 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 टोटोलॉजी आ रही है कि नहीं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि ऑलवेज फॉल्स, अनसेटिस्फाइबल। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स व्हाट? अनसेटिस्फाइबल, ऑलवेज फॉल्स। कंटिजेंसी और सेटिस्फाइबल मतलब कि ट्रू भी है एंड नहीं भी है। इनवैलिड का मतलब क्या है कि कम से कम एक बार फॉल्स है, राइट। तो कंटिजेंसी, सेटिस्फाइबल, इनवैलिड, ये एक ही टर्म है, ओके। एक ही है क्या? एब्सोल्युटली एक ही यार, क्योंकि कंटिजेंसी और सेटिस्फाइबल हम लोग इसको बोल क्या रहे हैं कि नीदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रडिक्शन है। यानी कि ट्रू 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 सारे जगह पे नहीं है और फॉल्स 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 भी नहीं है सारे जगह पे। तो यानी कि कुछ कुछ जगह पे ट्रू है एंड कुछ कुछ जगह पे फॉल्स है, राइट। तो एटलीस्ट वन जगह पे तो फॉल्स होगा, तो इसका मतलब है कि यह इनवैलिड है। तो इनवैलिड इज इक्वल टू कंटिजेंसी इज इक्वल टू satisfiability, not unsatisfiability. Unsatisfiability means what? Contradiction always, ठीक है। एब्सोल्युटली, ठीक है। ये भी हमने देखा था कि an argument is said to be valid if conclusion Q can be derived from the set of premises by applying the rules of inferences, ठीक है। हाँ, अभी ये इम्पोर्टेंट है यार, ये डायग्राम है ना, ये इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इसको याद ही रखना पड़ेगा हमको। देर इज नो अदर ऑप्शन विच वी हैव, राइट। ठीक है ना। कौन सा डायग्राम है ये वाला डायग्राम है। फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिक्टिव लॉजिक, सॉरी प्रेडिकेट लॉजिक। भाई इंग्लिश को भी सुधारना पड़ेगा यार, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं अपन लोग, है कि नहीं। शेप्स में ऑक्टागन आ जाएगा क्या? नहीं आएगा यार ऑक्टागन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे है फॉर ऑल वाई फॉर ऑल एक्स, यहाँ पे है डेल्टा, मतलब ये साइन को यार अभी क्या बोलते हैं, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट सम, सॉरी मैं भी भूल रहा हूँ यार, है साला। फॉर ऑल एक्स इसको उल्टा कर दो, ठीक है। फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, सॉरी, देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट एक्स। देखो कैसा है ना कि यहाँ पे फॉर ऑल है, तो यहाँ पे हमको करने का है देयर एग्जिस्ट। अभी इसको खाली यहाँ पे उल्टा करने का है और ये वाले को हमको सामने लेके आने का है और ये वाले को, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर हम इसमें देखते हैं फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, तो इस पर्टिकुलर केस में देयर एग्जिस्ट सम होगा, ये होगा, इसका उल्टा होगा यहाँ पे एंड ये वाला आएगा सामने, राइट। सो ये, ठीक है। और जो रिलेशन होगा वो इस तरीके से होगा, यानी कि इफ ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, और इफ ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, राइट। नीचे नीचे जाएगा, ठीक है ना। फॉर दिस थिंग
where exists some we need to use and for all के केस में we can use the वो कौन सा साइन है यार, वो implication वाला साइन, ठीक है. Okay, now this topic is also done. Now we are going to move towards the group theory, right? Group theory के बारे में अभी डिस्कस करते हैं. मैं थोड़ा सा जाके मैं पानी पी के आता हूँ. ओके